Hello students, today I am going to explain you chapter 1 Reproduction in Organisms class 12 line by line explanation in detail. Chapter 1 Reproduction in Organisms Asexual Reproduction. In this method, a single individual parent means whenever a single organism is involved in reproduction is called asexual reproduction. As a result, the offsprings that are produced are not only identical to one another but are also the exact copies of their parent. Basically, what happened whenever there is asexual reproduction, only one parent is used, so no recombination occurs. As you have learned, as you have seen in class 11, that whenever the cell divides, the chiasmata is formed and the recombination occurs. But since there is only one organism, so the reproduction will be kind of a fission. It will be kind of a equational division, mitosis, जिसकी वजह से जो सेल्स होंगे, जो नए सेल्स होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल. यहाँ पे आइडेंटिकल हम कैसे बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकली भी, मतलब दिखने में भी सेम होंगे अपने पेरेंट के बाहरी तौर पे, और इंटरनली मीन्स उनका जो जेनेटिकली कॉन्सेप्ट होगा कि कैसे बिल्डअप होना है होगा, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल. इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबी होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो प्रोजेनी होती है, उसको हम क्लोन बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट. वी आर सेइंग parent, not parents, because only one parent is involved in asexual reproduction and the offspring is the exact copy of their parents. Let us see how widespread asexual reproduction is. That means to say कि widespread किस organism में कहाँ देखी जाती है. Among different groups and organisms, asexual reproduction is common among single cell organisms. अभी हमने देखा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपके प्रोटेस्टास एंड मोनरस क्या होते हैं? सिंगल सेल या यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. एंड प्रोटिस्ट क्या होते हैं? सिंगल सेल और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. जनरली जो सिंगल सेल या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है. So, in protists and monorans, the organisms or the parent cell divides by mitosis to give rise to the new individual. अब यहाँ पे since जो है यहाँ पर जो parent है that is single cell. अब इसको अगर हमें नया individual बनाना है तो identical बनाना है. Identical अगर आप देखो यहाँ पर हमारा meiosis करेंगे तो 2n से n and then n and then again n and then again n. तो यहाँ पर प्लॉइडी चेंज हो रही है. दैट मीन्स जो हमारा नया सेल है दैट इज नॉट आइडेंटिकली जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट वन. लेकिन जब हम माइटोसिस करते हैं, इन माइटोसिस द सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. इफ दिस इज 2n then the progeny will also be 2n. If the cell is haploid, if the cell is n, then the progeny will also be n. In case of mitosis, that is called equational division. जब division जो हो बिल्कुल similar हो, same division हो. Thus, in organisms, cell division is itself mode of reproduction. यहाँ पर cell divide हुआ और cell divide होने के साथ साथ उसने क्या किया? reproduction भी दिखाया. So, in unicellular organisms, in single cell organisms, cell division is itself a mode of reproduction. Class 11th में क्या था? Cell growth and cell reproduction are twin characters or the mutual events. अब यहाँ पे कुछ examples हैं, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हो. This is the fusion in amoeba, fission. Fission means होता है टूटना और fusion means होता है जुड़ना. तो यहाँ पर सेल टूट रहा है दो हिस्सों में, तो यहाँ पर क्या होगा? फिजन. दिस टाइप ऑफ फिजन दैट इज सीन इन अमीबा इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. द टाइप ऑफ फिजन सीन इन अमीबा इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो फिजन होगा वो कहीं से भी हो सकता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस नहीं है. पेरिमीशियम और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल फिजन देखा जाता है. मतलब जैसे यहाँ पर हमारा फॉर सपोज यहाँ पर मैं पेरीमीशियम लूँ, तो पेरीमीशियम में अगर आपका फिजन होगा
तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। कुछ सेल्स में ट्रांसवर्स फिजन भी हो सकता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजन, आपके कोर्स में बाइनरी फिजन है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, दिस ग्रीन फिगर 1.2 सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड बडिंग। ये जो यीस्ट सेल है, दिस इज यीस्ट सेल। यीस्ट सेल में छोटी सी एक बड निकली और वो धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो रही है। इस बडिंग में क्या हो रहा है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जैसे ये बर्ड बड़ी होती जाएगी, मैच्योर होती जाएगी, एक इंडिविजुअल बन जाएगी, उसके बाद ये पेरेंट बर्ड से डिटैच हो जाएगी, हट जाएगी और फिर अपना ग्रो करना शुरू कर देगी। फिर जब वो अपनी मेच्योरिटी अटेन कर लेगी, उसके बाद फिर उसमें से एक नई बर्ड आएगी, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, वो धीरे धीरे मैच्योर होगी एंड फिर पेरेंट से अटैच हो जाएगी। तो ऐसे करते करते बर्ड बनेगी, बड़े ग्रो करेगी, मैच्योर होगी, डिटैच हो जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। अभी भी आप देखो, बाइनरी फिजन और बडिंग दोनों में कोई भी दूसरा पेरेंट नहीं आया, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था और एक ही पेरेंट की मदद से नया ऑर्गेनिज्म हर बार बन रहा है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अभी हमने पढ़ा बाइनरी फिजन एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, where the cell divides into two halves and each rapidly grows into the adult. यहाँ पर जो नए सेल्स बनेंगे, दिस वॉज द पेरेंट सेल, फिर यहाँ से दो डॉटर सेल्स निकलेंगे, एक से दो डॉटर सेल्स आए एंड दीज सेल्स विल अगेन अटेन मेच्योरिटी एंड दे विल गिव राइज टू अगेन टू डॉटर सेल्स। सो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन से नए नए सेल्स बनते रहेंगे, नए नए ऑर्गेनिजम्स आते रहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, अमीबा एंड पेरिमीशियम। अगर डीप में जाना है तो देख सकते हो, अमीबा में होता है बाइनरी फिजन और आपका पेरिमीशियम में होता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। अभी हमने देखा कि उसमें डिवीजन कैसा था, अनइक्वल। एक छोटी सी बड निकल रही है, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, फिर उसके बाद वो और बड़ी हो रही है एंड वो अल्टीमेटली अटैच हो जाएगी। तो डिवीजन बेसिकली कैसा हुआ, अनइक्वल हुआ, which eventually gets separated and mature into a new yeast. Organisms under unfavorable conditions of amoeba withdraws the pseudopodia and secrete three-layered hard covering or cyst around itself. This phenomena is called incestation. अब अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर सही नहीं है, एसिडिक मीडियम हो चुका है या मोर बेसिक मीडियम हो चुका है, तो उसमें जो आपका अमीबा है, दैट्स रैंडम स्ट्रक्चर, अंडरगोज अपनी ये स्यूडोपोडिया जो हैं उनको विड्रॉ करता है, उनको ख़त्म करता है और ख़ुद को एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में लाकर अपने आप अपने अराउंड एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। 1, 2 and 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। हार्ड कवरिंग, ये कवरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है जो उसको आउटर एनवायरनमेंट से, आउटर अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सिस्ट की फॉर्म में वो बन चुका है, एक सिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर वो डेवलप हो चुका है। अब इस प्रोसेस को अपने आप को प्रोटेक्ट करके 3 लेयर में सेव करना, फिर एक हार्ड अपने आप को एक सिस्ट की फॉर्म में बना लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इंसिस्टेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंसिस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जब कंडीशन सही हो जाएंगी, टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, मे बी वाटर अवेलेबल हो जाए या फिर जो एसिडिक मीडियम था या जो बेसिक मीडियम था वो हट जाए, उसके बाद वो अपना जो इंसिस्टेड अमीबा है वो मल्टीप्लाई करने लगेगा, आपको अंदर ही अंदर डिवाइड करने लगेगा और फिर जैसे ही यहाँ पर देयर इज अ क्रैक इन दिस इंसिस्टेड वॉल, यहाँ से वो बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो एक ही अमीबा से बहुत सारे अमीबा निकल गए एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोरियोस्पोर्स। द सिस्ट विल बर्स्ट आउट, फिर ये सिस्ट जो है ये बर्स्ट आउट हुई एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग। ये स्पोर्स जगह जगह जाकर फैल जाएंगे एंड मीडियम टू ग्रो अप इन द मेनी अमीबा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन। तो यहाँ पे हमने 2 फिनोमिना पढ़े अमीबा के अंदर ही, एक था इंसिस्टेशन, खुद को कवर कर लेना, और फिर उसके बाद छोटे छोटे स्पोर्स बना लेना। फिर उसके बाद जब आपके पास फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी तो इस जो सिस्ट की वॉल है वो बर्स्ट हो जाएगी, फिर जो छोटे छोटे स्पोर्स थे अमीबा के, जिन्हें हम स्यूडोपोरियो स्पोर्स बोल सकते हैं, वो स्प्रेड हो जाएंगे एंड देन दे अगेन स्टार्ट ग्रोइंग।
इसका एक एग्जाम्पल बुक में अमीबा का तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास का दिया हुआ है। देखो यहाँ पर इंसेस्टेशन हुई हुई है इसकी, अंदर ही अंदर उसने अपने स्पोर्स बनाए। इन स्पोर्स को हम बोलेंगे जू स्पोर्स। जू स्पोर्स इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे आप देखोगे क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू स्पोर एंड जाइगोट। तो जू स्पोर सबसे पहले तो किस वजह से हुआ है, ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट। इसमें सिंस यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, मोटाइल। जूस्पोर्स आर मोटाइल, दे कैन मूव, दे कैन हैव अ मूवमेंट। लेकिन जाइगोट आप देखोगे आगे चल के कि जाइगोट बना है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज नॉट मोटाइल। Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special reproductive structures. The most common of these structures are zoospores. अभी हमने पढ़ा zoospores are what? Asexual spores which are motile. Asexual spores which are motile. ये बहुत important point है. That usually are microscopic motile structure. Other common asexual reproduction structures are conidia and penicillium. बर्ड्स इन हाइट। ये जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम के ऊपर यहाँ पर ये बर्ड्स बनने शुरू हुई हैं, बेसिकली स्पोर्स बनने शुरू हुए हैं। इन स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया। एंड सिंस ये बॉडी के बाहर हैं, पेनिसिलियम की बॉडी के बाहर है, तो इनको हम एक्सोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जो क्लेमाइडोमोनास में स्पोर्स बने थे वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर बने थे। दैट्स वाई दीज जूस्पोर्स आर हियर आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। ये सिस्ट के अंदर बने थे, दैट्स वाई दीज वर द एंडोस्पोर्स। एंड यहाँ पर एकोनिडिया बाहर है, एनवायरनमेंट में है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एक्सोस्पोर्स। उसके बाद जैसे हमने यीस्ट में पढ़ा था कि बडिंग होती है, वैसे ही हाइड्रा में भी बडिंग देखी जाती है। धीरे धीरे ये बडिंग बनती रहेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होगी, अडल्ट हो जाएगी एंड फिर डिटैच हो जाएगी। स्पॉन्जेस में विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन जेम्यूल इज द सोर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पर्म्स। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे टोटीपोटेंट सेल्स या फिर आर्कियोसाइट सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स हमने पढ़ा था, टोटीपोटेंट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जिनमें एक नए सेल बनाने की पूरी कैपेबिलिटी होती है। तो बहुत सारे टोटीपोटेंट सेल्स इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर उसने अपने आप को लेयर्स में इकट्ठा कर लिया है। एंड दीज स्पाइक्स आर दी स्पिक्यूल्स फॉर द प्रोटेक्शन। ये अपने आप को इकट्ठा कर लेगा, जेम्यूल का स्ट्रक्चर बना लेगा, और कहीं पर सबस्ट्रेटम मिलते ही इस फॉर्म में दीज आर द टोटीपोटेंट सेल्स ऐसे सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये टोटीपोटेंट सेल्स इकट्ठा होकर खुद अपने आप को एक स्पॉन्ज बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो एक स्पॉन्ज ने अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में उसके कुछ टोटीपोटेंट सेल्स इकट्ठे किए, जेम्यूल स्ट्रक्चर बनाया, एंड देन उसको वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया। फिर जैसे ये जेम्यूल किसी और सबस्ट्रेटम में जाकर फेवरेबल कंडीशंस के अंदर अपने आप को टोटीपोटेंट सेल्स डिवाइड करेंगे और एक नया स्पॉन्ज बनाना शुरू कर देंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।